الحمدللہ میں نے بتایا تھا آپ کو 2 دفعہ بتائی کہ میں 50 سال کے لگ بھگ ہونے کو آیا ہوں. جی تو بالکل. اب مطلب 1 سال اور بچا ہے، اس کے بعد 6 سال کی بچی ڈھونڈنے نکلو گے نا؟ سنت پوری کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ. آپ نے کہا نا مسٹر سنت غالب پوری کرنی ہے. ایک منٹ کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. پلیز مسٹر پلیز. غالب اس طرح کی بکواس کرنی ہے نا، اس طرح کی بکواس کرنی ہے تو پھر میں اسی طرح کا بکواس جواب بھی دوں گا. محمد صاحب میری آپ بات سمجھیے گا، جذباتی میں ہو گئے آپ سر، کو سن معافی رہا ہوں، اس چاہتا کا یہ ہوں مطلب نہیں سر. کہ میں ہاتھ جوڑ کے بولوں، آپ معافی کو چاہتا اجازت دوں گا اس طرح کی بکواس کرو آپ بیٹھ کے اسٹریم کے اوپر. ہوں. محمد صاحب اپنی معافی بچی چاہتا دے ہوں. دو، میں کر لیتا ہوں نکاح. 6 سال نہیں کی نہیں بچی، اپنی بچی لا کے دے دو مسٹر غالب، میں کر لوں گا نکاح، مسلمان بھی کر لوں گا اور نکاح بھی کر لوں گا. لا کے دو اپنی بچی. یہ بکواس کر رہے ہو یہاں پر بیٹھ کے، تمہاری میں نہیں بکواس نہیں سننے کے لیے بیٹھا ہوں. پھر محمد بندے صاحب کو معافی انسٹیگیٹ چاہتا ہوں کرتے ہو میں. کہ جی آگے سے بکواس کرے، پھر بولو گے جی میری اسٹریم خراب کر کے چلے گئے. سر آپ نے سنت کی بات کی کہ آپ سنت کو فرض کے طور پہ لے رہے ہیں. ختنے سے بات چلی، آپ انہوں نے ایک کس چیز کو سوال کس پوچھا چیز ہے، سے جذباتی نہ ہو. یہ کس بکواس سے ملا رہے، کس بکواس سے ملا رہے اس کو آپ یا پہ. ارے ابھی آپ نے کیا بولا کہ ایک مومن کو جتنا علم رکھنا چاہیے اتنا نہیں ملے سکا، ایسے ہی تو آپ نے بولا کچھ. تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ علم تو آپ کا 60-70 سال کی عمر میں بھی آپ شاید ایک نقطے برابر بھی علم حاصل نہ کر سکو، ایک الگ چیز ہے وہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے کو جس طرح یعنی کہ میرے کو جتنی علم ہونا چاہیے تھا بحیثیت مسلمان، وہ اتنا علم میں نہیں رکھتا جو ہمارے عالموں کے پاس ہے، جو مسٹر سچ والا کے پاس ہے، جو مرتد ہونے کے باوجود اتنا علم رکھتے ہیں. اتنا علم رکھنے کے باوجود مرتد ہو گئے، سوری یہ الفاظ تھا میرا، کہ جی اتنا علم غالب جی رکھنے کے بات کریں. باوجود مرتد ہو گئے. جی ایک منٹ. غالب جی بات اچھا کریں. یہاں پہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر سکتا ہے؟ کیا کہا اعجاز آپ نے؟ صاحب. جی کون سی آیت چاہیے؟ ایک بار 27-82 ہے شاید، ایک بار پیش کریے، دھیان دی 27-82 پیش کریے. دیکھتے ہیں 27-82 دیکھ رہے ہیں سر. اوکے 27-82 چیپٹر نمبر الجمل 27. اس میں 82 یہ تو کوئی زمین سے جانور نکالیں گے جو باتیں کرے گا، ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے. ہاں ابھی زمین محمد صاحب بولے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تو پھر یہ جانور کون ہے؟ اس کا جو جواب میرا مفتی آ کے دے گا انشاءاللہ. جس دن آپ کے سامنے لا کے بٹھاؤں گا ان کا جواب ان سے آپ کسی مفتی سے پوچھیے گا. آپ بات سمجھیں، آپ جو بات بار میرے کو ادھر لا کے کھڑا کر دیتے. بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ میں شاید اتنی نالج نہیں رکھتا. ہم قرآن مجید کے اندر اندازے نہیں لگا سکتے، آپ بات سمجھو، ہم اندازے نہیں لگا سکتے، ہم غلط تشریح بھی نہیں بیان کر سکتے. ہمارے لیے یہ ایک ایکس مسلم ہو جانے والی بات ہے. محمد جی بات سنیں، اگر ہمیں آپ اس ہر کی بات پہ تفسیر پھر بھی ہم مفتی لے بیان نہیں آتے کر ہیں. سکتے. دھمکی دینے کو ڈاکٹر آپ صاحب خود میرے آ ڈاکٹر گئے. ایک منٹ. جی تو سر. مطلب آپ صرف کسائی کا ہی کام کرتے ہیں کیا سر ہاں جی؟ جی کسائی کا کام کرتے ہیں آپ صرف. بول محمد سکتا جی ہوں میں؟ پلیز ہاں پلیز. ہاں. سر آپ جدھر کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہو میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں. یہ کسائی کا کام نہیں ہے، یہ شریعت کا کام ہے. آپ تھوڑا ارے صبر ٹھیک. کریں، ہمیں اسٹریم پہ آنے دیں، پھر جزم سے ہم آپ ارے کو یہ ساری چیزوں کے اچھا آپ جن آیتوں کا آپ خلاصہ چاہتے ہو، ہم پھر جب بیٹھیں گے تو ہمارے پاس بھی مفتی آئیں گے، وہ ان کا خلاصہ بھی بتائیں گے، اس کی تشریحات بھی بتائیں گے، اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے. اس تک آپ کراس کوسچن کیجئے گا. آپ تو ایک پھر ایسے آپ بندے سے کراس کوسچن کر رہے ہو جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے. آپ اس بندے سے مخاطب ہو جو بندہ اس بات کو یقین کرتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اس کی غلط تشریحات سے بھی روکا ہوا ہے. اگر میں خدا نہ کرے کوئی غلط تشریح کر بیٹھا تو شاید میں اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہ کر سکوں. اس لیے میں اس چیز سے بچتا ہوں. جی آپ محمد جی جو یہ آپ خدا کا خوف کھا رہے ہیں نا، غلط تشریح نہ کر سکے، مرتد کی سزا سر تن سے جدا بھی اسی زمرے میں آتی. مرزا غالب جی بات کریں سر پلیز. مطلب کہ ان بھائی صاحب سے پڑھنے لکھنے والی باتیں کرنا بیکار ہے. تو وہی تو کہہ رہے ہیں، وہ جو بات کریں پھر وہ مفتی پہ ڈال رہے ہیں. قتل کی سزا، قتل کی دھمکی مفتی نہیں دے گا، قتل کی دھمکی محمد علی نہیں صاحب دے رہے ہیں. ان کو ایک کام نہیں. دیتا ہوں.
कुछ मोहम्मद चीजों के, साहब, अब जैसे नमाज के बारे में हमने पढ़ा है, मेरी बात समझिएगा, नमाज के बारे में पढ़ा है हमने कि जी नमाज आप छोड़ोगे तो उसका ये अजाब है, हमने पढ़ा है। आप मुझे नमाज के बारे में पूछे कि नमाज ना पढ़ने वाली की सजा क्या है, नमाज ना पढ़ने के बाद क्या होता है, नमाज पढ़ने के बाद क्या होता है, तो ये जो चीजें तो मैं आपको बता सकता हूँ। हज ना करने यानी कि आप वसाइल रखते हैं, हज ना करो तो आपके पर क्या यानी कि उसका वो है, सजा है, बिल्कुल इसके ऊपर तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। मगर ये पूछे कि जी हज के अंदर कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती है, डेफिनेटली मैं जब हज पे जाऊंगा तो मैं उनको याद करके जाऊंगा। हज के अराकीन क्या है उनको मैं याद करके जाऊंगा, उनके लिए मेरे पास बकायदा लेसन होगा, उसके लिए मेरी ट्रेनिंग होगी, उसके लिए पूरे को क्लासेस ज्वाइन कराई जाती हैं, हम लोगों को क्लासेस ज्वाइन कराई जाती है, इसीलिए कराई जाती है कि अपने अराकीन पूरे कर सको। तो यहाँ पर आप भी वही चीज कर रहे हो कि आप सामने चले ठीक हो गया मोहम्मद अली साहब, जरा उन्हें क्वेश्चन नेक्स्ट पूछने दें। गालिब जी प्लीज, गालिब सर एक लाइन बोल दूं, या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। तो मेहरबानी थोड़ा सब्र रखा करिए सर जी। और मैं एक कोई चीज पूछता हूँ, आपके घर के पीछे कोई पेड़ है? मोहम्मद अली साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में अपने पेड़ लगे हुए। तो ऐसा करिए, 4, 6, 10 छोटे पत्थर लीजिए और गिरगिट मारने निकल जाइए, क्योंकि आप सिर्फ मेरी नजर में सिर्फ उसी काम लायक हैं। जी थैंक यू सर, आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसके ऊपर जी कुछ कह सकता, आपकी ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल जी। मैं जब आपको आके ओपनली मुर्तिद कह सकता हूँ, आप सुनते हो तो आप मेरे बारे में भी कुछ बोल सकते हो, मुझे भी ओपनली सुनना चाहिए और बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। गालिब मिर्जा गालिब जी एक सवाल पूछता हूं मैं इनसे, जरा आप इजाजत दे दें प्लीज। मोहम्मद अली साहब, आपने कुरान पढ़ा, मैंने भी कुरान पढ़ा। जब मैंने पहली दफा कुरान पढ़ा बा तर्जुमा, तो मुझे मिला कि कुरान के अंदर सिर्फ 3 वक्त की नमाज है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने कहा जी मेरे पे नमाज पे बात करें, तो 5 नमाजें किसने आप पे लागू की जो आप पढ़ रहे हैं? कभी सोचा या कभी पूछा आपने? प्लीज डॉक्टर साहब दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कुरान को 42 दफा बार तर्जुमा पढ़ा। कुरान में सिर्फ 3 नमाजों का जिक्र है, तुलुए आफ्ताब से पहले, उसके बाद जब आफ्ताब मिड डे पे आ जाए, और फिर गरूब आफ्ताब। 3 वक्त अल्लाह को याद करो। 3 नमाजें यहां से साबित होती हैं, तो आप 5 क्यों पढ़ रहे हैं? नंबर 2 के खतना का जिक्र पूरे कुरान में नहीं है, आप किस तरह उसको इस्लाम का सर्टिफिकेट बना के तो बच्चों के खतने कर रहे हैं? 2 सवाल हैं। थैंक यू। जी मोहम्मद साहब, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो खतना के ऊपर जवाब दे दूं कि ये सुन्नत रसूल अल्लाह है और हम इसको क्या नाम, ये आपको भी पता है डॉक्टर साहब, आप चूंकि मेडिकल से रिलेटेड हो तो आप बेहतर जानते हो कि सुन्नत जब पूरी हो जाती है, इसीलिए हम इसको सुन्नत कहते हैं कि ये हमारी सुन्नत रसूल अल्लाह है और ये हमारे पे फिर लाजिम है कि मुसलमान सुन्नत फर्ज होती है, बच्चा जो सुन्नत फर्ज तो नहीं होती सर, सुन्नत फर्ज होती है। जी सर, क्या सुन्नत फर्ज फर्ज नहीं होती है है सर, आपके मेरी मुताबिक? बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, ये हमारे लिए इस हवाले से फर्ज हो जाती है कि हमारे जो सुन्नत है, देखिए मेरी, आप इसको अल्फाजों में ना पकड़े, हम इसको बिल्कुल हम इसको फर्ज की तरह लेते हैं, है तो ये सुन्नत, मगर हम इसको लेते फर्ज की तरह है। मेरी बात समझ रहे, हम लेते फर्ज की तरह है। हमारे लिए यहाँ पे सुन्नत जो है, हम चूंकि उसके जो फायदे हैं, फवाइद जो हैं, वो एक मुसलमान ही जान सकता है जिसका खतना हुआ होता है। जो सुन्नत करवाता है ये फायदा वही जान सकता है, जिसका नहीं हुआ वो उसको नहीं समझ सकता। एक बात। दूसरी बात है कि हम इस सुन्नत को बिल्कुल फर्ज की तरह ही लेते हैं, है वो सुन्नत अपनी जगह है। जी मिर्जा गालिब, ये सर जी क्या नाम है, क्या उम्र बताए थे आप अपनी? 50 साल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया था आपको 2 दफा बताई कि मैं 50 साल के लगभग होने को आया हूँ। जी बिल्कुल। तो अब मतलब 1 साल और बचा है, उसके बाद 6 साल की बच्ची ढूंढने निकलोगे ना? सुन्नत पूरी करने की बात कर रहे हैं वो, आपने कहा ना मिस्टर सुन्नत गालिब, पूरी एक करनी है। मिनट, कोई नहीं बोलेगा। मिस्टर गालिब, इस तरह की बकवास करनी है ना, इस तरह की बकवास करनी है तो फिर मैं इसी तरह का बकवास जवाब भी दूंगा। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको सुन रहा हूँ, ये मतलब नहीं कि मैं आपको, मैं बोलूँ, आपको इजाजत दूंगा इस तरह की बकवास करो आप बैठ के स्ट्रीम के ऊपर।
मोहम्मद साहब अपनी माफी बच्ची चाहता दे हूँ। दो, मैं कर लेता हूँ निकाह। 6 साल नहीं की नहीं बच्ची, अपनी बच्ची लाके दे दो मिस्टर गालिब, मैं कर लूंगा नहीं निकाह, मुसलमान भी कर मोहम्मद लूंगा और निकाह भी कर लूंगा। लाके दो अपनी बच्ची। ये बकवास कर रहे हो यहाँ पर बैठ के, तुम्हारी मैं नहीं बकवास नहीं सुनने के लिए बैठा हूँ। फिर मोहम्मद बंदे साहब को माफी इंस्टिगेट चाहता हूँ करते होगे मैं। जी आगे से बकवास करे, फिर बोलोगे जी मेरी स्ट्रीम खराब करके चले गए। सर आपने सुन्नत की बात की कि आप सुन्नत को फर्ज के तौर पे ले रहे हैं, खतने से बात चली, आप उन्होंने एक किस चीज को सवाल किस पूछा चीज है, से जज्बाती ना हो। ये किस चीज को किस बकवास से मिला रहे, किस बकवास से मिला रहे, उसको आप यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो। और ये जनाब पता माफी नहीं, चाहते हैं इसीलिए तो आपसे। मुर्तिद हो तुम लोग, इसीलिए तो मुर्तिद हो तुम लोग कि तुम लोगों को वाजिबुल कत्ल इसीलिए तो कहा गया है। क्यों मैं निकला हूं बाहर, तुम लोगों के एड्रेस क्यों ढूंढता फिर रहा हूं? पागल हूं मैं अपने सारे काम धंधा अपना बिजनेस छोड़ के तुम लोगों के एड्रेस ढूंढता फिर रहा हूं? क्यों सर ढूंढ रहा हूं आपकी मैं? बड़ी क्यों लोगों मेहरबानी, को जोड़ रहा हूं एड्रेस। मैं? क्यों स्ट्रीम की बात कर रहा हूं? क्यों तुम लोगों को घंटे घंटे भर 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के सुन रहा हूं? इसलिए कि मैं उस काम को करने जा रहा हूं। अब तुम लोग अपनी खैर मनाओ, जिस दिन तुम लोग के एड्रेस में इंडिया के अंदर फेंकूंगा, सर लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं दिखाऊंगा तुम लोगों की शक्लें दिखाऊंगा। उस मोहम्मद वक्त से साहब, डरो, उस वक्त से डरो, देखें, उस वक्त से डरो। आप जिस अब नबी की यहाँ पे बात मसला कर आ रहे रहा हैं है, उन पे कूड़ा एक फेंका मुर्तिद का जाता था, वो आगे से कूड़ा फेंकने पे सब्र करते थे, आपने एक बात पे इतना हंगामा उठा दिया। मैं माफी मांग रहा हूं अगर कोई बदतमीजी होगी आका की शान में। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया है, वो भी इसलिए उन्होंने किया कि आपने कहा कि मैं एक सुन्नत को फर्ज की तरह लेता हूं, हालांकि कुरान में इनके जिक्र पास नहीं है। बकवास इल्म है, इनके पास मेरे सर मोहम्मद दुनिया सल्लल्लाहु जानती है अलैहि आयशा की वसल्लम के उम्र 9 हवाले से साल है बकवास मोहम्मद इल्म सर। है। सर इसीलिए माफी तो चाहते मुर्तिद हैं है ये आपसे। बंदा, और किस लिए मुर्तिद है ये? सर और मुर्तद किस की लिए बात मुर्तिद नहीं, है इस ये? वक्त अकल इलम की हम बात हो क्यों रही है। बार बार कह रहे हैं कि ये मुर्तिद की सजा क्या होनी चाहिए? क्यों अल्लाह ताला ने तो ये सवाल मुर्तिद क्यों पूछने वाले इतनी की जल्दी सजा भी रखा क्या गया कि सरपंच मुर्तिद से को सबसे जुदा पहले है? सजा दो? मोहम्मद साहब बात सुने, देखें, आप भड़क उठे, अगर आपके दिल पे चोट लगी माफी चाहते हैं, या तो मान जाएं कि आका ने 9 साल की आयशा से शादी नहीं की, हाँ या ना में जवाब दे दें, अगर गलत है तो बता दें प्लीज। सर मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप वो इल्म के वो सवाल कर रखे हो मेरे सामने जिसकी मैं आपको हाँ या ना में जवाब देके चले जाऊं, बाद में पता चले तहकीक से कि ये जो सवाल ऐसे नहीं ऐसे था, इसका जवाब ये नहीं था ये था। तो मैं इसको कभी भी मैं जिसकी नॉलेज नहीं रखता या जिसके ऊपर मेरे को डाउट होता है कि मैं उसके ऊपर हाँ बोलूं या ना बोलूं, वो मैं नहीं जवाब देता। मैं अपने मजहब को बड़ा सीरियस लेता हूं, मैं अपने मजहब की गलत तशहीर नहीं कर सकता। उसके लिए यही है हुक्म, हमारे लिए बार बार यही हुक्म दिया है कि जिस चीज की नॉलेज ना हो उसके अंदर ना बोलो। ठीक यहाँ हो है गया। मुझे जिस चीज की नॉलेज है मैं वही बात कर रहा हूँ और तो बार बार कर रहा हूँ कि मुर्तिद के साथ क्या करना है। और मेरा अच्छा यकीन है जी, कि जो कुछ मेरे कुरान मजीद में और मेरी अहादीस शरीफ के अंदर लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है। इसीलिए मैं अपने सारे काम धंधे, अपने सारे कारोबार को साइड लाइन लगा के मैं आप लोगों के पीछे पड़ा हूं, ऐसे नहीं पड़ गया मैं। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे वीजा पीछे पड़े हैं, पासपोर्ट अपना बनवा वक्त दें। लिए? एक सवाल का जवाब जी, मिर्जा गालिब बात करें प्लीज, थैंक यू। ये बोल रहा हूँ मोहम्मद साहब, वीजा पासपोर्ट बनवा लिए? वीजा पासपोर्ट बना लिए, ये पूछ सर रहे हैं गालिब साहब। मैं बताता हूँ गालिब साहब, आपके घर के अंदर या आपकी गली के अंदर दरख्त है? वो गिरगिट नहीं है भाई वहां पे। हाँ तो जाके ढूंढ ले, फिर पत्थर ना मारे तो कम से कम ढूंढ लो। नहीं टेंशन क्योंकि मत लीजिए, गालिब जी काम जिस चला तरह की दूंगा। आपकी नॉलेज है उसको उसी तरह जवाब दूंगा मैं। अब मेरे को पता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, अगर जितने आप मेरी नॉलेज के ऊपर उंगली उठा रहे हो, मैं तो अपने मजहब की नॉलेज के ऊपर बात करते हुए मैं थोड़ा घबराता हूं कि यार मेरे मुंह से कोई गलत ना निकले, इसकी वजह से मैं बैक करता हूं, वरना और कोई वजह नहीं है। ये मैं कोई हिंदू नहीं हूं कि मैं बड़बड़ बड़बड़ बोल दूंगा ये गीता में ये लिखा हुआ है। भाई मेरे को नहीं पता तो फिर नहीं पता, वहां पे जहां पे नॉलेज नहीं है मैं खामोश हो जाऊं। जितनी मोहम्मद नॉलेज साहब आपकी है सर मुझे पहले भी तो अंदाजा हो रहा है। जज्बात को कंट्रोल करें, देखें प्लीज, आपको बाकी इस वक्त 1200 लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करें प्लीज। पहली तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मुंह सर से कोई आप ऐसी बड़े बात ठंडे निकल गई। तरीके से, आप बड़े ठंडे तरीके से, आप लोग यहाँ पे बड़े ठंडे तरीके से अगले बंदे को इंसिगेट करते हो कि जी ऐसा जुमला बोलो कि अगला बंदा बढ़ के ये 6 सर साल वाली भड़का जो नहीं बात रहे करी थी मैंने तो मोहम्मद जवाब साहब। दिया, मैंने तो सर जवाब दिया, तो अब वो उसके ऊपर ठंडे हो गए। ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं तो तैयार हूं मैं 6 साल की बच्ची से शादी करने के लिए। लेके आए मिस्टर गालिब अपने सामने, सर ये लेके जाती आए। सवाल नहीं था, आप सॉरी माफी चाह रहे हैं, जाती सवाल नहीं था। आपने धड़ल्ले से कहा कि एक सुन्नत है लेकिन मैं फर्ज बना के पूरा करूंगा, ये करते हैं। उन्होंने इतना कहा कि जब आप 50 के ऊपर होंगे
तो क्या जिस तरह आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की आयशा से शादी की, क्या आप भी कर सकेंगे? आप हाँ या ना में जवाब दे दें। आप खामखा No, बढ़त क्यों जाइए। मैं हाँ या ना में जवाब दूं, जिसकी मुझे पता ही नहीं है, मैं हाँ या ना में अच्छा, ये जवाब पता कैसे नहीं दे है दूं? आपको। तो ठीक जब है, तक मिर्जा मेरे गालिब को बात नॉलेज करें। नहीं होगी, जब तक मैं नॉलेज रखने के बावजूद उसको वेरीफाई करूंगा। इसीलिए जब कोई आलिम बैठ के कह रहे गुफ्तगू करता है, मैं तो सिर्फ मोबाइल पकड़ के आपसे बात कर रहा हूँ। या मैं उठूंगा, यहाँ से मोबाइल बंद करूंगा, अपना लैपटॉप खोल लूंगा, वहां से बात करूंगा। बात समझे, जब कोई आलिम बात करता है, उसके सामने कभी आप देखिएगा मुनाजरे के अंदर उसके सामने किताबों को कितना बड़ा ढेर रखा हुआ होता है। वो हर चीज जानने के बावजूद किताबें रखता है कि यार मैं कहीं गलत ना बोल दूं, इसलिए रेफरेंस उठाता है, सर, रेफरेंस उठा कत्ल के से बात आगे करता क्या है। गलत बोला जाएगा? कत्ल से आगे क्या गलत बोला जाएगा? आप जरा मिर्जा गालिब की बात सुने, आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, एक थोड़ा सा गिलास पानी का पी लें। इन्नल्लाह मास साबरीन। आप गिलास पानी का पिए। गालिब साहब जी बात करें आप प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं आलिम लोग दुनिया भर की किताब लेके बैठते हैं। अरे भाई, मैं भी 100 किताब लेके बैठ जाऊं, बात पढ़ने ना पढ़ने की होती है ना। हाँ जी, इससे क्या मोहम्मद अली होता है? जी। मोहम्मद गालिब अली साहब, मोहम्मद इसका मतलब है आपने कभी मनाजरे देखे ही नहीं है। आपने, इसका मतलब है मनाजरे देखे ही नहीं है। आप कभी मनाजरे देखो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से पड़े हुए, बहुत अच्छे अच्छे आलिमों के एक ही मजहब को लेके, एक ही चीज को लेके मुनाजरे हुए। कभी हमारे बड़े आलिमों के मुनाजरे तो देखे आप, वो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, उसके बावजूद सैकड़ों किताबों की और सैकड़ों लोगों की टीम लेके बैठते हैं कि कौन सी बात हो रही है, कौन सा रेफरेंस चाहिए, वो लोग उसको ट्रेस आउट करके देते हैं। तो आप मुनाजरे के अंदर बैठे हुए हो, तो आप कभी मुनाजरे को, अच्छे मुनाजरे को देखो तो आपको यही मिलेगा। आप इस मुनाजरे को छोड़ दें, आप किसी प्रोफेसर से बात कर ले तो वो भी किताबों के सहारे की बेस के पर ही बात करेगा। ये डॉक्टर साहब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर रेफरेंसेस होंगे, कोड होगा, प्रोफेसर कभी किसी क्लास में जाता है तो वो क्यों अपने साथ किताबें उठा के लेके जाता है? वो क्यों किताब खोल के अपने सामने टेबल पर रख के बात करता है? वो तो सब कुछ मोहम्मद जानता है, भाई, फिर तो जरूरत ही नहीं जी। है। मोहम्मद अली साहब पॉइंट आ गया। मिर्जा गालिब साहब प्लीज बात करें। मोहम्मद भाई, तो उन आलिमों से जरा पूछ के मुझे बता देना कि बुढ़िया कूड़ा कहाँ फेंकती थी, किताब में या मस्जिद में? गालिब साहब बस थोड़ा सा इंतजार करें, स्ट्रीमलाइन स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली। गालिब साहब थोड़ा अरे इंतजार करें, बस मेरी स्ट्रीमलाइन स्टार्ट होगी तो फिर इंशाल्लाह आपके पास आ भी जाएगा, सामने भी आ जाएगा। अरे आवाज सुनो, खराब होगी मोहम्मद अली साहब आपकी। गिलास पानी का पी के जरा माइक ठीक करें। अरे मोहम्मद भाई, अरे पूछ के बता दो ना। आप कांटेक्ट में होंगे ना आलिम, सिर्फ रेफरेंस मांग रहा हूँ। वो मोटी मोटी किताबों में क्या पता लिखा पड़ा हो। अबे पूरा पानी में गिर गया, पानी में घुस गया, पानी में घुस गया। यार जानू छालिया 7 रुपए की मिल ही नहीं रही मुझे छालिया। खाना निकाल नहीं मैं नहीं नहीं, खाना नहीं यार, चूल्हा जलाओ यार, पानी घुस गया अंदर। अब ऐसा करिए मोहम्मद भाई, मक्खी की तरह मोबाइल को भी एक बार और डुबोइए पानी में, उसके बाद साइड में रखिए। दोनों परों को डुबोना जरूरी हो जाता है।